Assalamu alaikum everyone and आप सब लोगों को I welcome you all to this pre-budget seminar and thank you very much to the panelists and the viewers for joining me. आज हम अपने पाकिस्तान की जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा बजट आने वाला है और हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ख़राब है, जिसकी बेसिस पे आपने देखा भी होगा कि हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने एक पेपर पब्लिश किया है जो कि अब बहुत मशहूर हुआ हम पाकिस्तान से रिलेटेड नाजुक मोड़। आप लोगों की नज़र से गुजरा है वो नाजुक मोड़ वाला पेपर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और मैं कहूँगी कि लम्हा फ़िक्रिया भी है कि मतलब अगर हार्वर्ड के प्रोफेसर की अटेंशन हमारे मुल्क की तरफ जो है वो डाइवर्ट हुई और उन्हें ऐसा लगा कि हमारे मुल्क के लिए बड़ा नाजुक मोड़ है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये पूरी दुनिया इस चीज़ को समझ रही है कि इस वक्त हमारा मुल्क काफ़ी नाजुक मोड़ पर है, स्पेसिफिकली उसकी जो माशी हालत है। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अयूब मेहर से, जिसके साथ मैं डिस्कशन करूंगी उनका इंट्रोडक्शन साथ साथ देती जाऊंगी। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Okay, वालेकुम सलाम। Doctor, a brief intro of Dr. Ayub Meher. It's not possible for me to introduce him. Obviously, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े मैं कहूँगी कि इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं एंड बहुत सेवरल आपके पास जो है वो पोजीशंस हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो मैं दूंगी जिसमें शायद मैं सब कुछ कवर ना कर पाऊँ, तो उसके लिए बड़ी माजरत। Dr. Meher has served as Director General in the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry for 7 years. He has also been appointed as Economic Advisor in the Economic Cooperation Organization in 2014 and the SAARC Chamber of Commerce and Industry in 2009. Currently, he is associated with Economic Council of Employers Federation of Pakistan and serving as professor at Iqra University, Karachi. He served as a research associate in the Department of Economics, University of Massachusetts in 2006, a panelist for Graduate Research Awards in Finance at Frankfurt University, Deutsche Bank in 2014 and 2016, 2014 till 2016. FPCCI nominee and spokesman in WTO Mission for Trade Policy Review, WTO Resource Center, Commonwealth Investment and Enterprise Association London, GIZ Commission on Non-Tariff Measures in South Asia, UNDP, Shanghai UN Industrial Development Organization Program for Young Entrepreneurs and Innovators, D8CCI Statute Formation Committee, Competitiveness Support Fund, and Business Support Fund, USAID. He has served as a member resource person in the various committees and working groups formed by Government of Pakistan, including working groups on capital market reforms, medium-term development framework, 5-year development plan from 2005 till 2010. So he is also working in the working groups on balance of payment, Advisory Council of PSQCA, CPEC Committee, and Cotton Crop Assessment Committee, Private Sector Credit Allocation Committee, and so on. He also served as a resource person in an instructor in advanced level training programs conducted by National Institute of Public Administration, NEPA, for grade 20 officers. State Bank of Pakistan, NABAF, National Bank of Pakistan, and Higher Education Commission of Pakistan. He also served as a member of National Curriculum Development Committee for Business Administration, Economics, Entrepreneurship, and Commerce. The Technology Policy and Assessment Center at Georgia Institute acknowledged his membership in the distinguished panel of international experts for indicators of technology-based competitiveness, which is a project of U.S. government. He's also an alumnus of IAL Gummerbach, Germany,
where he got training in public finance. He is the author of The Effectiveness of Monetary Policy in the Encyclopedia of Monetary Policy, Financial Markets, and Banking, and elsewhere 2023. He completed a study on nexus of debt, financing, investment, and policy intervention for international business in times of crisis. Um, in tribute to Professor Geoffrey Jones, the Harvard Business School, he has completed various research assignments for the puzzling nexus of wealth enhancement, trade, and financial technology, jointly published by University of Cambridge and Asian Development Bank. So it's not enough, I know that, but again, thank you so much for joining us. सबसे पहले तो डॉक्टर अयूब साहब आपसे एक ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप इस वक्त क्या देखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, इकोनॉमिक कंडीशन को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि यस इट इज इजी टू मैनेज, या आपको लगता है कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज, और क्या आपका इससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है? जी प्लीज। थैंक यू सैमा, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आप ही की बात से शुरू करूंगा। पहले मैं आपने किसी को इंडिकेट की है तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि हार्वर्ड की रिपोर्ट के बारे में जो आपने नाजुक मोड़ का की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं कि 1950 मिड 1950s में इसी थिंक टैंक ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, और उस रिपोर्ट का टाइटल था पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ एशिया। उसमें रिकमेंडेशन में ये चीज मेंशन की गई थी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री है और इसको सब कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग पावर है एशिया में। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का वजूद नहीं होता तो एशिया को प्रॉब्लम होती है। बैलेंस रखने वाली फास्ट ग्रोइंग कंट्री पाकिस्तान है, ये हार्ट ऑफ एशिया है। ये एक 50 में आई थी, और आज ख्याल ये है कि वही इंस्टीट्यूशन आज एक नाजुक मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। और जो नाजुक मोड़ की तरफ इशारा हुआ है, कम से कम 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस तरह के इंडिकेशन मिले हैं। 3 या 4 प्लेटफॉर्म ऐसे। सबसे पहले आपने इशारा कर दिया हार्वर्ड की रिपोर्ट। दूसरा, एक खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट के लोग हैं और जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली कहूंगा मैं कि एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट हुई है कि ये आखिरी मौका है, दिस इज लास्ट चांस। इस तरह के वर्डिंग पहले नहीं इस्तेमाल हुई थी कि आखिरी चांस है। आखिरी चांस से क्या मतलब है? इकोनॉमी को अगर सही करने का आखिरी चांस है तो क्या होगा, इसके बाद क्या है? तो वो हमें सोचना चाहिए, वो हमें कोई रेक्टिफिकेशन मेजर लेनी चाहिए। जब आखिरी चांस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके बाद कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा। तीसरा जो एक और इंडिकेशन आया है वो मूडीज की जो रिपोर्ट आती है, उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ट्रिपल सी में आया है। ट्रिपल सी का मतलब ये होता है कि जो कंट्रीज जब इस पोजीशन पे आ जाती हैं कि वो अपना एक्सटर्नल डेट मजीद ले तो सस्टेनेबल नहीं रहता, फिर खतरा होता है कि ये वापस नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का 75 ईयर्स का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने जहां से भी लोन लिया है लाजमी वो लोन वापस किया है, कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। बिल्कुल। हमने कंडीशन मानी है, सख्त तरीन कंडीशन हमने ओबे किया है। आवाम को प्रॉब्लम हुई है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन को प्रॉब्लम हुई है, कंडीशनलिटीज हमने फॉलो की है, लेकिन कभी डिफॉल्ट नहीं किया। बिल्कुल। अब ट्रिपल सी का मतलब है कि हमें एक इंडिकेशन दी गई है कि पाकिस्तान को लोन देते वक्त जरा देखिएगा कि एक ट्रिपल सी रेटिंग हो गई है, डेट सस्टेनेबल नहीं रहा। उसकी वजह ये कि हमारी माजी में ये प्रैक्टिस रही कि हम डेट को वापस देने के लिए मजीद डेट लेते गए, फिजिकल डेफिसिट मैनेज नहीं किया, ट्रेड डेफिसिट मैनेज नहीं किया, लोन लेते रह गए। और अब वो इस स्टेज पे आ गया है कि जहां सस्टेनेबिलिटी का इशू है। इस पर मैं अभी और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आईएमएफ ने भी एक इंडिकेशन दी है। आईएमएफ ने अच्छी रिपोर्ट जहां दी है वहां एक इंडिकेशन भी दी है, और ये पहली दफा हुआ है कि आईएमएफ ने इस तरह की इंडिकेशन दी है। आईएमएफ ने कहा है कि जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है और जो महंगाई की सूरत हाल डिवेल्प होने वाली है, उससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। आईएमएफ तो जो मेजर्स बताता रहा है, जीएसटी बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, उनसे उन इकदाम से तो महंगाई बढ़ती थी ना कंट्री में, महंगाई ज्यादा होती थी।
खुद आईएमएफ अब कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब है आईएमएफ से नेगोशिएट करना चाहिए कि कम से कम वो हम उनकी रिकमेंडेशन ना माने जिनसे ये चांस हो या खतरा हो कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि खुद आईएमएफ जब ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ने से इंस्टेबिलिटी होगी, तो कम से कम 4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से इस तरह के इंडिकेशन दिए गए हैं। अब देखें, जो इंस्टेबिलिटी की बात की गई है या डेट की सस्टेनेबल नहीं रहे, हम मुकाबलेट रहते गए, करते गए, डेट को देने के लिए डेट मजीद लेते रहे। उसमें मैं देख रहा था कि एक अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे एनालिस्ट जो होते हैं, जो होस्ट भी, एनालिस्ट भी, इकोनॉमिस्ट भी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी, वो इस तरह की जब स्टेटमेंट देते हैं कि सब अच्छा है, कुछ नहीं, सब ठीक है। देखिए, अगर हम सब अच्छा कहेंगे ना, तो फिर रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगी। हमें रेक्टिफिकेशन में लेने कोई सोल्यूशन अगर बताना है, तो पिन पॉइंट करना होगा प्रॉब्लम क्या है। सब अच्छा कहने वाले ये एक एग्जांपल देते हैं, अक्सर देते रहे हैं, कि पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो तो 90% से कम है, इंडिया का 100% से ज्यादा है, जापान का 230%, 100% से ज्यादा है, अमेरिका का जो है वो 150% है, टर्की का 200% है, हमारा तो 90 भी नहीं है। देखिए, इसमें वो बहुत बड़ी चीज हाइड कर रहे हैं, डेलिबरेटली हाइड कर रहे हैं या उनको पता नहीं। ये जो नेशनल डेट टू जीडीपी रेशो जिन कंट्रीज की वो बता रहे हैं, उसमें वो जो डेट की फिगर ले रहे हैं, उस डेट का मेजर पोर्शन जो है वो उनके कारपोरेट सेक्टर ने डेट लिया हुआ है, कारपोरेट बॉन्ड की शक्ल में कंपनीज ने लिया हुआ है। उन कंपनीज ने अर्निंग करनी है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, प्रॉफिट कमाने हैं और अपने प्रॉफिट से वो डेट वापस करना है। पाकिस्तान का केस इंटायरली डिफरेंट है। पाकिस्तान ने जो एक्सटर्नल लोन लिया है, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लोन वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, वो गवर्नमेंट को वापस करना है। गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट तो टैक्स लगा के वापस करेगी ना। तो ये बिल्कुल, कंपैरिजन नहीं हो वो बर्डन मतलब आवाम पे ही आएगा ना। वो तो हवाम पे आएगा ना मैडम जी, जी बिल्कुल। जी। हवाम पे सही। टैक्स लगाएंगे, हवाम को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज का लोन और बात थी। तो ये बिल्कुल एक इंडिकेटर है। फिर दूसरा, जो दो चीजें आई हैं अनसस्टेनेबल के अलावा, दूसरा एक डोमेस्टिक फ्रंट पे एक चीज देखने में आई है, नई चीज एक ऑब्जर्व हुई है। एक प्रैक्टिस थी कि जो डिपॉजिट्स होते थे बैंक्स में, पब्लिक के जो डिपॉजिट्स होते हैं, उनका मेजर पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को डेट की शक्ल में जाता था, ताकि वो बिजनेस में यूज हो, यूटिलाइज हो, इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हो। वैसे मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रेडिट है, वो उसकी जो जीडीपी से रेशो है वो दुनिया में सबसे कम है। हमारी कोई रेशो 17% के करीब बनती है। नेबर कंट्री की जो है वो भी दुनिया में तो अच्छी नहीं है, लेकिन वो 60% के करीब है, हम 17% के करीब है। और बाकी वर्ल्ड में अगर देखें तो वो रेशो 100% से ज्यादा होती है, जीडीपी के 100% से ज्यादा होती है, हम सिर्फ 17% से। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में जो चेंज आई है, कि उस 17% में भी ये हुआ है कि पहले इंडस्ट्री लोन लिया करती थी फिक्स्ड एसेट्स के लिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। बैंक से वो लोन लेते थे, नए प्लांट लगाते थे, मशीनरी लगाते थे, बिजनेस में एक्सपेंशन होती थी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती थी, ग्रो करते करती था, जीडीपी ग्रो करती थी। गुज़िश्ता 2 साल में वो लोन जो लिया गया है, कोविड के बाद जो लोन लिया गया है, वो फिक्स एसेट के बजाय वर्किंग कैपिटल के लिए लिया गया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, कैश की प्रॉब्लम के लिए, ताकि वर्किंग कैपिटल मैनेज, जो 2 साल से वो था। लेकिन इस साल एक नई प्रैक्टिस हुई कि इस साल जो बैंक का ज्यादा पैसा है वो यूटिलाइज हुआ है गवर्नमेंट को लोन देने में, फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने में। वो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं हुआ। ये एक नया इंडिकेटर है। ये इस बजट से पहले और आईएमएफ से एग्रीमेंट से पहले ये दो नई चीजें आई हैं, इनको हमें मैनेज करना होगा। इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर बात बहरहाल करनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को रिकमेंडेशन देनी चाहिए, और यहाँ हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी के लिए। ये दोनों चीजें सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर्स सही। हैं। एक एक जी और चीज में, अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त है, जी एक जी। और चीज की तरफ मैं इंडिकेशन करना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट बहुत अक्सर आती है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबल एक शर्त किसी हद तक कह सकते हैं, कि वो 20-30 साल से हम सुन रहे हैं, हर बजट से पहले भी और किसी इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले ये कहा जाता है कि इस दफा पब्लिक को बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये हार्ड टाइम है, और इस हार्ड टाइम में थोड़ा सा आपको पेन लेना होगा। आने वाले हालात 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सही हो जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट दी जाती रही है, हमेशा से दी जाती रही है, और उसका बर्डन अल्टीमेटली जो है वो बिजनेस सेक्टर पे या पब्लिक पर, कॉमन पीपल पे पड़ता रहा है। मैं देखिए, इकोनॉमिक्स में
हम कहते हैं एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट या मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म होता है। ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में पेन लेना कि शॉर्ट टर्म में पेन होगा। आप भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हम सब लोगों का किसी ना किसी फॉर्म में यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रहा है। आप सोचिए, वो ग्रेजुएट जो इस साल या अगले साल या गुज़िश्ता साल ग्रेजुएशन करके मार्केट में आते हैं, जब उन्हें जब पता लगे कि 2 से 3 साल हार्ड टाइम है, तो ये 2 से 3 साल ही तो होते हैं यंग मैन की जिंदगी के, जिसमें उन्होंने मेजर डिसीजन लेने होते हैं। उन्हें हम्म। पढ़ना है, उन्हें बाहर जाना है, उन्हें नई फैमिली फॉर्मेशन करनी है, उन्हें अपने घर वालों को घर बनवाना है, उनको घर वालों को ट्रैवल करवाना है, उम्रा हज करना है, शादी उनकी करनी है। ये 2 से 3 साल का ही अरसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी 2 से 3 साल में आप कहते हैं कुर्बानी दे दो, तो वो कुर्बानी 2 से 3 साल की नहीं होती, वो कुर्बानी लाइफ टाइम की होती जिंदगी भर की है, बिल्कुल। है। फिर उनका लाइफ डिट्रैक हो जाता है पूरी लाइफ के लिए। बिल्कुल। फिर वो कोई और कारोबार छोटा मोटा सोचते हैं, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जाएंगे, वो करियाना स्टोर खोलेंगे। फिर उनके जो प्लान होते हैं, जो ख्वाब होते हैं ना, वो खत्म। तो शॉर्ट टर्म का को कुर्बान नहीं किया जा सकता, ये कह के कि लॉन्ग टर्म में चीजें सही होती और हैं। मार्केट में भी शॉर्ट टर्म उसी की सोल्यूशन। डिमांड खत्म हो जाएगी ना, मतलब जो बंदा उस वक्त इनिशियली अगर बच्चा एंटर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो फिर तो उसकी मार्केट डिमांड खत्म, फिर जो न्यू आएगा उसकी जगह खत्म पे खत्म। जाएगा। हाँ बिल्कुल। लाइफ टाइम खत्म है, लाइफ उसकी लाइफ टाइम उसके एक बिल्कुल। एक शख्स नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ पूरा उसका बिल्कुल घराना सही, अफेक्टेड हो जाता सही है, बात। फैमिली अफेक्टेड हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म हमें सोल्यूशन आज लेना है, ये नहीं कहना कि 3 साल बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। हमें अभी सोल्यूशन चाहिए, पूरी इकोनॉमी को, तमाम लोगों को सोल्यूशन चाहिए। अगर बेरोजगारी बढ़ती है, आज के हार्ड टाइम होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल नहीं रहता, तो ये 2 से 3 साल में तो बहुत कुछ फिर अब मुल्क का अल्लाह हाफिज है, इंशाल्लाह मुल्क बच जाएगा। लेकिन 2 से 3 साल में जो फैमिलीज और इंडिविजुअल इफेक्टेड होंगे, वो तो लाइफ टाइम के लिए इफेक्टेड होंगे फिर। हम्म। ये जहन में रखना। पढ़े लिखे लोग इफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे, आप देखिए ना ब्रेन ड्रेन कितना फास्ट हो रहा है। तो जो भी मतलब जिसको भी मौका मिलता है, अगर वो स्किल्ड भी है और उसको मतलब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, स्किल तो बहुत है हमारे पास, कमी नहीं है स्किल्स की। आप देखें ना बाहर जा जाके किस तरीके से ये लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं हमारे बच्चे, और हमारे अपने पाकिस्तानी। तो जाहिर सी बात है स्किल्स हैं इनके पास, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो स्किल्स हम पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अगर हम उसको यहाँ यूटिलाइज करेंगे तो मुझे लगता है शायद बहुत बेहतर जो है वो उनको कंडीशन। यूज करने की पॉलिसी का लैकिंग है, पॉलिसी लैकिंग है। हम्म। और दूसरा ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग जा सकते हैं वो चले वो जाएंगे। जाते हैं बिल्कुल। मासी से नहीं जा पाएंगे, मासी से यही रहना है, वो नहीं छोड़ सकते मुल्क। बिल्कुल। बाहर या जा बूढ़े लोग, बाहर मतलब जाएंगे मेरे तो बात है, एक एज होती है हर चीज की। अभी मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं हर साल बच्चे मुझसे रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हैं, आप यकीन करें कि इस दफा इट वाज लाइक के तकरीबन 80% बच्चों ने रिकमेंडेशन लेटर्स लिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे हैं। बहुत बड़ा। हाँ जी, मतलब आप सोचिए कितना हैवी इन्वेस्टमेंट है। बाहर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पढ़ना। हर किसी को तो 100% स्कॉलरशिप तो खैर होती ही नहीं, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप होती है, फिर भी बहुत हैवी अमाउंट होता है। हाँ, पाकिस्तानीज के लिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इसी से रिलेटेड है कि आपको क्या लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त करंट कंडीशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? देखिए, जैसे मैं अरसा था 2005 वगैरह में, मिड 2000 में, कि हमने एफडीआई का जो टारगेट था वो $7 बिलियन एक साल में इनफ्लो देखा है। इसका जी। मतलब है पॉसिबल था। जी। अब तो हम 1 बिलियन भी नहीं कर पाते। उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक एक्सचेंज है, और एफडीआई जब तक नहीं आएगी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रॉब्लम रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट सही नहीं हो पाएगा, वो रहेगा, और आपको आईएमएफ के पास बार बार जाना पड़ेगा जब तक एफडीआई की सूरत हम्म। आप सही नहीं कर पाएंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए, एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका जो इन्वेस्टर होता है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा नहीं होता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं, वो आज आते हैं, खरीदते हैं, और कल को वापस भी जा सकते हैं, कभी भी शेयर बेच के। वो तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, बॉन्ड है, शेयर है, खरीदे बेचे। जो एफडीआई वाला इन्वेस्टर होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसने लेकर आनी होती है, वो कम से कम 10 20 30 साल का प्लान बना के आता है। डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में पैसे ला रहा है, सर्विसेज में है या मैन्युफैक्चरिंग में है। तो वो तो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है ना, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। वो तमाम, जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस भी कहते हैं, वो अपना पूरा शॉर्ट एनालिसिस करता है,
20-30 साल में क्या होगा, उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करता है, देखता है। वो उन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करता है जो 20-30 साल में उसको फेस करने हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, उन सबको वो फिजिबिलिटी में एनालिसिस करता है, उनका उसकी बेस पे बिल्कुल आता है। बिल्कुल। अब उसकी बेस पे अगर एफडीआई वाला आएगा, तो अभी जो मेनली जो जो डरता है जिन चीजों से, आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत आइडियल होनी चाहिए, बहुत आइडियल होनी जी चाहिए। भाई। आपकी करेंसी का डिवैल्यूएशन का रिस्क नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं होना चाहिए। कधी सर दूसरी चीज ये कि आपके जो अ, आपकी आवाज कट गई। एक मिनट मैं जरा म्यूट कर दूं वो आई थिंक। जी अब सही है। हेलो। जी अब सही है, अब सही, अब जी आवाज आ रही है। जी ठीक है। वो असल में तो उसमें बैकग्राउंड एफडीआई वाले भी आ रही थी जी। वो इन फैक्टर्स को देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, आपकी करेंसी डिवेल्यूएशन फ्यूचर में तो नहीं हो जाएगी, इन्फ्लेशन तो फ्यूचर में नहीं बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर वो डूइंग ईज ऑफ बिजनेस इंडिकेटर हैं, टैक्सेशन के हैं, गवर्नमेंट के महकमों से उसको निपटना है, वो रेगुलेशंस क्या हैं, वो इन सारी चीजों को एफडीआई वाला सब चीजों को कंसिडर करता है। इस वक्त गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए एक स्टेप लिया है, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, जो SIFC के नाम से जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी बनाई है। उसमें अच्छी चीज ये है कि उसमें गवर्नमेंट भी और पॉलिसी मेकर जो हमारे हैं, और उसमें हमारी फोर्सेस भी, आर्म फोर्सेस भी, वो एक पेज पर है। बल्कि उसका उसको कहें कि उसको इनिशिएट आर्म फोर्सेस की तरफ से किया गया था कि ऐसा इससे शुरू करें, वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेंगे। लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें सिर्फ 5 सेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं कि इनमें अट्रैक्ट करेंगे, और उसका मतलब मकसद ये है कि इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी। कंट्रीज भी आइडेंटिफाइड है कहाँ से लानी है इन्वेस्टमेंट, दोस्त कंट्रीज हैं। किन सही। सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आनी है SIFC के जरिए, वो सेक्टर भी आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट लानी है, ताकि इन्वेस्टमेंट उसमें आए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन वो एक लिमिटेड स्कोप है, जनरलाइज नहीं है कि तमाम सेक्टर में एफडीआई आनी शुरू हो तो जाए। आपको तो लगता है कि एफडीआई के आप लिए होपफुल हैं कि इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप होपफुल हैं? और कौन से सेक्टर्स आप हाईलाइट कर सकते हैं कि किसके ऊपर इस वक्त जो है वो ज्यादा एम्फेसिस है गवर्नमेंट का? उसमें 5 सेक्टर माइनिंग है, माइनिंग है उसमें मेनली तो है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैवलिंग टूरिज्म मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन है, उसमें सही है। एग्रीकल्चर है। ये सेक्टर्स हैं, इनमें माइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है। इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने का, फिर प्राइवेटाइजेशन जो होगी उसमें भी है। फोर्सेस की तरफ से ये रियलाइज कराया गया, इंश्योर किया गया है कि उनको बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मैनेज किया जाएगा। वो गारंटियर भी हैं, एक पेज पर हैं गवर्नमेंट के साथ। तो उन सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट लाएं, ये इंश्योर किया गया है। और डूइंग ऑफ ईज ऑफ बिजनेस का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टली ऑफिस बनाया गया है कि अगर किसी महकमे से कोई रुकावट आ रही होगी, तो उस महकमे की उस रुकावट को हायर लेवल पे उसको हैंडल कर लिया जाएगा। दैट आर द रीजन कि उन 5 सेक्टर को फोकस करके कि उनसे काम शुरू किया जाए, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी। आई होपफुल के कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक उसमें कोई आउटकम नहीं है। एस्टिमेट था कि $25 बिलियन तक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टारगेट है। अभी हम्म। उसमें कोई मटेरियलाइज नहीं हुआ। लेकिन सही। गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस जो हैं वो पे होपफुल काम है कि इस लेवल पे करेंगे। दोस्त कंट्रीज हैं उसमें, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, गल्फ की कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में, और सबसे बड़ी चीज है जो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम ऐसा करेंगे लेकिन हो नहीं पाया था। बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस था नेबर कंट्री में, इंडिया में। उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, बहुत कामयाब रहा था। हमें भी कहा गया था कि हम वो करेंगे। पिछली गवर्नमेंट ने खास तौर पे कहा था कि हम जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज के लिए कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है अभी तक। हालांकि ये तजर्बा 90s में इंडिया में बहुत कामयाब हुआ था। उनके यहाँ जो एफडीआई का इनफ्लो हुआ था, वो कोई यूएसए से या यूरोपियन यूनियन से नहीं हुआ था। हम्म। वो उनके अपने जो इंडियन थे उन्होंने किया था। तो वो बिल्कुल। भी हम अट्रैक्ट करके एफडीआई को बढ़ा सकते हैं। मेरी अपनी पर्सनल जो है वो डॉक्टर्स की कम्युनिटी में बात हुई थी। तो लास्ट गवर्नमेंट जब थी तो मुझे ये उन लोगों ने बताया था कि दे कलेक्टेड मनी
एंड उन्होंने पाकिस्तान भेजा था पैसा। डॉक्टर्स कम्युनिटी का मुझे आप पता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना कि इससे रिलेटेड कुछ उस पे था, तो लोग कर रहे थे यूएस के अंदर, तो मुझे पता चला था। बाकी जाहिर है बात है, अगर वहाँ हुआ है तो और जगह पर भी ये लोग कर ही रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे अपने जो भी एक्सपेट्रिएट्स हैं वो सारे इस लोग। समय वो जो भेज रहे हैं ना, जो भेज रहे थे और अभी भी भेज रहे हैं, जी वो दो तरह से। एक तो रेमिटेंसेस भेजना अलग बात है, रेमिटेंसेस अलग चीज नहीं नहीं, है। उनकी कम्युनिटी ने एफबीआई सिलेक्ट करके भेजा था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को भेज रहे थे, लेकिन जी मैं जी। एफबीआई की बात कर रहा हूँ। एफबीआई ओके। का मतलब है हाँ वो हो फिजिबिलिटी फॉल्ट है, रिपोर्ट ठीक है। बनाए और खुद आके बिजनेस करें, उसमें बिजनेस वही, करें। वो चीज, हाँ एफबीआई बिल्कुल। तो वो चीज है। बिल्कुल इसी क्या आपकी इसी बात से रिलेटेड। अच्छा, मेरे ख्याल में ये मीटिंग को जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट्स है, क्योंकि फिर मैं वो क्वेश्चन करूंगी तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।